Hello everyone. So in this video we are going to start with unit 2 of class 11th marketing, and unit 2 is basically relating to marketing environment. So let's go into detail. This is the study material which is prescribed by CBSE. So what is marketing environment? Why it is important? See, any business which exists, it does not exist in isolation. It affects and in turn is affected by many factors. आप ये वाला अगर डायग्राम देख पा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, this is the organization, right? And this organization is affected by various factors such as suppliers, public, competitors, customers, distributors, right? तो ये जितने भी हैं immediately organization को affect कर रहे हैं, so इनका impact organization पे immediate होता है. Then there are certain other factors which affect the organization, but they do not affect them directly, they affect them indirectly. तो economy हो गया, demography, legal structures, technology, political structures, social factors, what are culture factors. अभी हम एक एक factor को detail में पढ़ेंगे, right? So now coming to the definition part. What is marketing environment? So market environment consists of numerous factors and forces which are close to company, which affect its ability to serve and satisfy its customer for their needs and requirement. ठीक है, तो marketing environment का मतलब है बहुत सारे factors जो company को, organization को affect करते हैं. The way organization serve the customer, it is affected by various factors. So various definitions are given here. You can learn any definition. ठीक है, तो बहुत सारे authors की definition यहाँ दी हुई है. You can learn any one of the definition. These are the few factors, external factors which influence the business decision, like technological changes जो होते हैं, right? ये भी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करते हैं. जो भी चेंजेस हो रहे हैं तो कंपनी को अडेप्ट करना ही पड़ता है इन चेंजेस को, अदरवाइज द कंपनी विल लैग बिहाइंड. देन कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स भी होते हैं. गवर्नमेंट ने कोई भी पॉलिसी चेंज की, उसका इम्पैक्ट भी बिजनेस पे पड़ता है, राइट? जैसे डीमोनेटाइजेशन गवर्नमेंट ने किया था तो उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट बिजनेस पे पड़ा. गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है गवर्नमेंट की, फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, ये सब भी बिजनेस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं. देन सोशल चेंजेस, दिस ऑल्सो इम्पैक्ट की डिमांड फॉर रिजर्वेशन इन जॉब्स. माइनॉरिटीज के लिए, वुमेन के लिए कुछ रिजर्वेशंस अगर बोली जा रही है कि जॉब में रखनी है तो ऑर्गेनाइजेशन हैज टू स्ट्रिक्टली फॉलो दोज गाइडलाइंस. देन अगर कस्टमर्स के फैशन टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो रहे हैं तो डेफिनेटली उसका भी कंसिडरेशन ऑर्गेनाइजेशन को रखना पड़ेगा, इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा. देन इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, लेबर यूनियन अनरेस्ट है, तो इसका इम्पैक्ट भी बिजनेस पे पड़ता है. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, तो जस्ट गो थ्रू देम, राइट? सो मार्केटिंग एनवायरनमेंट बेसिकली क्या मतलब है कि कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करते हैं. सी, ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, रॉ मटेरियल लेता है, राइट, एंड कन्वर्ट इट इनटू फिनिश गुड्स. जब वो सोसाइटी से रॉ मटेरियल ले रहा है और प्रोवाइडिंग फिनिश गुड्स इन रिटर्न, so this is a mutual give and take exchange relationship, and there are various things which it has to keep in mind, and there are various factors which impact the organization. तो ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है एंड उस एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो पड़ता है उसी को हम बोलते हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट. ये देखिए, then there are two types of environment, stable or static, and the second is dynamic. Stable environment क्या है? जो environmental factors which do not show any significant change, they are called as stable or static environment. लेकिन
today, in today's era, today's time, the changes are happening very fast. और अगर आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस इम्पैक्ट रहा है. अभी AI टूल्स आ गए, चैट GPT है, तो अभी everybody is predicting कि AI will replace many jobs. So that kind of threat and fear is there in the mind of the people, right? तो डायनामिक इन्वायरमेंट क्या होता है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन फ्रीक्वेंट चेंजेस को ऑब्जर्व करता है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली. जैसे नया प्रोडक्ट डिजाइन आ गया, राइट, न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन आ गए, कॉम्पिटिटर्स मार्केट में नए आ गए, गवर्नमेंट पॉलिसीज नई आ गई, तो ये चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे. और इन जब फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं तो देयर इज बेसिकली इंस्टेबिलिटी, और इंस्टेबिलिटी, इस इंस्टेबिलिटी की वजह से बिजनेस एनवायरनमेंट बिकम्स वॉलेटाइल एंड दिस इज कॉल्ड एज डायनामिक एनवायरनमेंट, राइट. तो जो भी चेंजेस विद इन द फर्म हो रहे हैं या आउटसाइड द फर्म हो रहे हैं, अराउंड द फर्म हो रहे हैं, उन सभी चेंजेस के साथ ऑर्गेनाइजेशन को डील करना पड़ता है. विद इन द चेंजेस, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कौन से चेंजेस हो सकते हैं? हो सकता है कि एम्प्लॉयज आर मूविंग टुवर्ड्स द स्ट्राइक, दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट डूइंग वर्क. एंड आउटसाइड या अराउंड चेंजेस कौन से हो सकते हैं? गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गई. तो ये सारे चेंजेस को ऑर्गेनाइजेशन को डील करना पड़ता है. इट कैन नॉट इग्नोर सच चेंजेस. सो स्टेबल और स्टैटिक एनवायरनमेंट की जगह हमें ज्यादातर कौन सा देखने को मिलता है? डायनामिक एनवायरनमेंट, विच कीप्स ऑन चेंजिंग. देयर आर फ्रीक्वेंट चेंजेस internally as well as externally. So आप ये देखिए marketing environment. Marketing environment, there are two factors. The first is internal or controllable, and the second is external or uncontrollable, right? External uncontrollable is further bifurcated into two parts, micro and macro, right? Now what is internal environment? See, internal environment को हम controllable environment भी बोलते हैं. ये वो factors होते हैं जो जिस पे मैनेजमेंट का कंट्रोल होता है, ठीक है, तभी हम इन्हें कंट्रोलेबल बोलते हैं और इंटरनल भी बोलते हैं इन्हें. एग्जाम्पल, द फैक्टर्स विच रिलेट्स टू इंटरनल एनवायरनमेंट. एग्जाम्पल, प्रोडक्ट डिजाइन. ठीक है, प्रोडक्ट का कोई डिजाइन आपको चेंज करना है, कस्टमर को नहीं अच्छा लग रहा, तो वो डिजाइन कैन बी चेंज. मैनेजमेंट कैन इजिली चेंज इट. मैनेजमेंट का पूरा कंट्रोल है प्रोडक्ट के डिजाइन पे. कितना वॉल्यूम बढ़ाना है, कम करना है, उस पे भी मैनेजमेंट हैज कंट्रोल. देन रॉ मटेरियल कहाँ से प्रोक्योर करना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, लेबर को कितनी लेबर रखनी है, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए एक्सपेंशन के लिए. एंड अपार्ट फ्रॉम दीज फैक्टर्स जो मैंने अभी रीड किए हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, लाइक 4 P's ऑफ मार्केटिंग: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. ये सारे कंट्रोलेबल है. वाई दे आर कंट्रोलेबल? सी, इनको इसलिए कंट्रोलेबल बोला जाता है, प्रोडक्ट के ऊपर भी ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल है. प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, डिजाइन क्या होना चाहिए, डिसीजंस कौन लेता है? मैनेजमेंट ही लेती है. प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, वो भी मैनेजमेंट डिसाइड करता है. किस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को रखना है, शॉर्ट, लॉन्ग, कितने मिडलमैन हायर करने हैं, किस प्लेस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऑल सच डिसीजंस आर टेकन बाय द मैनेजमेंट एंड देयरफॉर मैनेजमेंट हैज अ कंट्रोल ओवर दीज काइंड ऑफ डिसीजंस. प्रमोशन, इस पे भी मैनेजमेंट का कंट्रोल है, ठीक है ना. कैसे कंट्रोल है? एडवर्टाइजिंग पे कितना अमाउंट खर्च करना है, नहीं करना, कितने सेल्स पर्सनल रखने हैं, तो कौन सा चैनल ऑफ प्रमोशन, मीडिया ऑफ प्रमोशन यूज करना है, एडवर्टाइजिंग, मैगजीन, न्यूज़पेपर. सो ऑल सच डिसीजंस आर टेकन बाय द मैनेजमेंट. क्योंकि मैनेजमेंट का इन फैक्टर्स के ऊपर कंट्रोल है, मैनेजमेंट हैज अ राइट टू ऑल्टर सच things. So that is why it is called as internal or controllable environment. Then what is external or uncontrollable environment? ठीक है. So any type of marketing environment which cannot be guarded by the management of the company, it is called uncontrollable environment. So मैं इसको highlight कर देती हूँ, right?
तो जिन फैक्टर्स के ऊपर मैनेजमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता, and management has to simply adapt itself, so that is called as external uncontrollable environment. इंटरनल में क्या होता है, मैनेजमेंट अपना डिसीजन लेती है, चीजों के ऊपर कंट्रोल कर देती है, ऑल्टर कर देती है, प्रोडक्ट का डिजाइन अच्छा नहीं है, ठीक है, तो मैनेजमेंट का राइट होता था, तो दैट इज वाई वो कंट्रोलेबल था। लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करते हैं। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जिसको हम अनकंट्रोलेबल भी बोलते हैं, दे आर फर्दर bifurcated at two levels, micro and macro. माइक्रो कौन से होते हैं? सी माइक्रो और मैक्रो दोनों एक्सटर्नल हैं, राइट, लेकिन माइक्रो एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं वो बिजनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे सप्लायर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, जनरल पब्लिक। सी ये बिगनिंग में ही मैंने ये जो डायग्राम आपको दिखाया था, लेट मी शो यू अगेन, यस दिस वन। देखिए यहाँ पे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ ये ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, ये जो फैक्टर्स है, सप्लायर्स, पब्लिक, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर, ये सारे माइक्रो एनवायरनमेंट है, ये सारे माइक्रो है तो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर एक्सटर्नल है, लेकिन ये बिजनेस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें माइक्रो एनवायरनमेंट ये हम बोल रहे हैं, ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सिमिलरली ये वाले फैक्टर्स आप देखिए जो सेकंड लेयर पे है, ये भी एक्सटर्नल है ऑर्गेनाइजेशन के, इनको हम मैक्रो बोलते हैं, और ये बिजनेस को डायरेक्टली नहीं इन्फ्लुएंस करते, ये देखिए ये इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। नाउ गोइंग बैक टू द टॉपिक, जो नीचे एक बार मैं दोबारा उस पेज पे आ जाते हैं, यस, ये देखिए ये डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक अभी हम स्टडी करेंगे डिटेल में, राइट, दीज आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द फर्म एंड दे अफेक्ट द बिजनेस इनडायरेक्टली। यहाँ पे क्या था, माइक्रो में डायरेक्टली इम्पैक्ट करते थे, तो ये आपका बेसिकली इंटरनल और एक्सटर्नल है। इंटरनल में आई एम जस्ट गिविंग अ रिकैप ऑफ द टॉपिक। इंटरनल कौन सा हो गया, जो बिजनेस को, जिसपे मैनेजमेंट का कंट्रोल है, लाइक 4Ps हो गए, ठीक है, और भी फैक्टर्स है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्ट डिजाइन। एक्सटर्नल जिसपे मैनेजमेंट का कोई कंट्रोल नहीं, एंड एक्सटर्नल में अगेन दो हैं पार्ट्स, माइक्रो, मैक्रो, ये दोनों एक्सटर्नल के अंदर आते हैं। माइक्रो कौन से फैक्टर्स होते हैं, जो बिजनेस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। मैक्रो कौन से होते हैं, जो बिजनेस को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। सो थैंक यू, कीप लर्निंग and enjoy the journey with me. Please do subscribe to my YouTube channel. Thank you.